Hello friends, in this session we discuss about part 2 of structure and functions of immune system. In the part 1 we saw about different organs of the immune system, the central lymphoid organs and the peripheral lymphoid organs, thymus, bone marrow, spleen, lymph nodes, malt. And now we will have a look at the different cells of the immune system. Cells of the lympho-reticular system include lymphocytes and reticuloendothelial cells. The human body contains about 10 raised to 12 lymphocytes. 10 raised to 12. And out of these 10 raised to 12 lymphocytes, about 10 raised to 9, they are destroyed daily and new 10 raised to 9 are generated. So about 10 raised to 9 lymphocytes are renewed daily. Lymphocytes constitute about 20 to 45% of the white blood cells of the immune system, and they are found in the peripheral blood, lymphoid organs, and in many other tissues. According to size, the lymphocytes can be divided into 3 categories: small, medium, and large lymphocytes. And according to lifespan, they can be divided into 2 types: short-lived and long-lived. The short-lived lymphocytes, they are the effector cells. They have a lifespan of about 2 to 3 weeks. While the long-lived lymphocytes, they are the memory cells and they have a life of several years. There is constant traffic of lymphocytes through the blood, lymphatic organs and tissues, and a single lymphocyte will go through the entire circulation of the body and come back to the same place in about 1 to 2 days. मीन्स 1 से 2 दिन में हर एक लिम्फोसाइट पूरे बॉडी का पूरा चक्कर लगा लेता है, और ऐसे ही वो घूमते रहते हैं और पूरे बॉडी में चक्कर लगाते रहते हैं, क्योंकि उनका काम है कंटिन्यूसली सर्वेलेंस करते रहना, और कभी भी कहीं भी कोई भी एंटीजन अगर बॉडी में आए तो उसके कोरेस्पॉन्डिंग सेल्स उसके अगेंस्ट इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स माउंट करेंगे. So for preventing the pathogens from entering the circulation, the lymphocytes continuously keep moving in the entire circulation. Lymphocytes have antigen recognition mechanisms on their surface, so that each lymphocyte can identify only one type of antigenic determinant. फिर वो T सेल हो या B सेल हो, हर एक सेल एक ही टाइप का एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट को आइडेंटिफाई करता है, और जब वो स्टिमुलेट होता है तब उसके बहुत सारे क्लोन्स बन जाते हैं, और वो मल्टीपल क्लोन्स जो बन जाते हैं वो उस एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने में पार्टिसिपेट करते हैं. सो ये उसकी स्पेसिफिसिटी होती है. एवरी बी सेल एंड एवरी टी सेल हैज़ ए कैपेसिटी टू आइडेंटिफाई ओनली वन एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट, एंड इट विल डेवलप क्लोन्स आफ्टर बीइंग स्टिमुलेटेड टू इंक्रीज द नंबर. एक्टिवेटेड टी सेल्स होंगे वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में पार्टिसिपेट करेंगे, और एक्टिवेटेड बी सेल्स होंगे वो ह्यूमरल इम्यूनिटी में पार्टिसिपेट करेंगे. बी सेल्स और टी सेल्स के सरफेस पे कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, उनको बोलते हैं क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन और CD. और ये रिसेप्टर्स बहुत सारी संख्या में हैं, मोर देन 200, 300, मोर देन 300 CD रिसेप्टर्स हैं, और अलग अलग इम्यून सिस्टम के सेल्स में अलग अलग टाइप के CD रिसेप्टर होते हैं. they are kind of markers of the immune system cells. There are some differences between the T cells and B cells. T cell जो थाइमस में से डेवलप होते हैं तो उनके ऊपर थाइमिक स्पेसिफिक एंटीजन्स होंगे. T सेल्स के सरफेस पे CD3 रिसेप्टर होता है. T सेल्स में SRBC रोजेट फॉर्मेशन होता है, और ब्लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन विद एंटी CD3 होता है. These are 4 features of T cells. One is presence of CD3 receptor, second is blast transformation with anti CD3 receptor, then SRBC rosette formation and thymus specific antigens. These 4 things are there in the T cells, and there are some properties of B cells. B cells के सरफेस पे इम्यूनोग्लोबुलिन्स होंगे. B cells के सरफेस पे बहुत सारे माइक्रोविलाई होंगे. फिर उनके सरफेस पे रिसेप्टर होंगे फॉर FC पीस ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन G. फिर B सेल्स में EAZ रोसेट फॉर्मेशन होता है, और B सेल्स का ब्लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन होता है विद एंडोटॉक्सिन्स, एप्स्टीन बार वायरस और स्टेफिलोकोकस ऑरियस.
सो बी सेल्स और टी सेल्स के बीच में डिफरेंस के ये थोड़े पॉइंट्स हैं विच आर वर्थ रिमेंबरिंग. They can be useful in short notes and objective both. See, there are lots of CD receptors on the surface of B cells and T cells. B cell के CD receptors में CD20, CD22, CD19, CD62, CD40, CD52, CD40, CD86, CD80 एक्सेट्रा. और T cells में दो टाइप के T cell हैं, साइटोटॉक्सिक T cell और हेल्पर T cell. साइटोटॉक्सिक टी सेल के सरफेस पे CD8 और टी सेल रिसेप्टर, फिर CD3, CD2, CD28 और CD45R, ये सब रिसेप्टर्स होते हैं. और हेल्पर टी सेल के सरफेस पे CD4 होगा और टी सेल रिसेप्टर होगा. टी सेल रिसेप्टर तो दोनों के सरफेस पे होता है. फिर CD3, CD2, CD28 एक्सेट्रा. तो CD4 टी सेल्स के ऊपर उसका खुद का एक स्पेक्ट्रम ऑफ CD रिसेप्टर्स है. CD8 टी सेल का भी खुद का एक स्पेक्ट्रम है और B सेल्स का भी खुद का एक स्पेक्ट्रम ऑफ CD रिसेप्टर्स ऑन इट्स सरफेस है. फिर वो EAZ रोजेट और SRBC रोजेट अपने टेबल में देखा था. तो ये रोजेट फॉर्मेशन मतलब ये B सेल या टी सेल के सरफेस पे सब तरफ एक रोजेट फॉर्म में मोलिक्यूल्स डिपॉजिट हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं रोजेट फॉर्मेशन. टी सेल्स का मैचुरेशन कैसे होता है? तो प्रो टी सेल्स होते हैं इनिशियल स्टेज. इनिशियली टी सेल्स आर इन द फॉर्म ऑफ प्रो टी सेल्स. दे हैव CD7 रिसेप्टर एंड CD2 रिसेप्टर. These pro T cells will convert to pre T cells which have CD3 receptor and T cell receptor, and pre T cells will convert to proper T cells which have either CD4 or CD8, one of the two. CD4 plus T cells, they are called helper T cells, and CD8 plus T cells, they are called cytotoxic T cells. यानी कि T cell के मैचुरेशन में प्रो T cell, प्री T cell और फिर T cell. और T cell में भी दो वेराइटी है, हेल्पर T cell और साइटोटॉक्सिक T cell. तो जैसे जैसे उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है उसके सरफेस पे रिसेप्टर्स चेंज होते जाते हैं. तो प्रो टी सेल स्टेज में CD7 और CD2 रिसेप्टर हैं सरफेस पे. फिर प्री टी सेल स्टेज में CD3 और टी सेल रिसेप्टर हैं. और फिर जब प्रॉपर टी सेल बन जाता है तब उसमें CD4 या CD8 दो में से एक रिसेप्टर होता है और टी सेल रिसेप्टर होता है. और पुराने कुछ जो रिसेप्टर्स थे वो चले जाते हैं और नए कुछ रिसेप्टर्स आ जाते हैं. हेल्पर टी सेल का काम है एंटीजन को आइडेंटिफाई करना, और फिर बी सेल्स को भी हेल्प करता है वो, और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को भी हेल्प करता है. फंक्शंस में CD4 प्लस टी सेल रिसेप्टर अल्फा बीटा induce B cell maturation. They help B cells in antibody mediated immunity, and they help CD8 T cells in cell mediated immunity. They participate in both humoral and cell mediated immunity both. They produce lymphokines and they regulate certain stages of erythropoiesis. While CD8 plus T cells, they inhibit B cell antibody synthesis and they act as cytotoxic effector cells. B cells का maturation कैसे होता है? तो बी लिम्फोसाइट के प्रिकॉर्सर्स प्रो बी सेल्स जो फीटल लीवर में डेवलप होते हैं ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ और बाद में बोन मैरो में, वो प्रो बी सेल्स दे विल कन्वर्ट टू प्री बी सेल्स. दिस प्री बी सेल्स विल स्टार्ट सिंथेसाइजिंग इम्यूनोग्लोबुलिन M in the cytoplasm, और प्री टी सेल्स विल देन फर्दर डेवलप इनटू इमेच्योर बी सेल्स जिसमें IgM धीरे धीरे सरफेस पे आ जाएगा, एक्सप्रेस होने लगेगा बी सेल के सरफेस पे, और इमेच्योर बी सेल्स में से फिर फर्दर मैच्योर बी सेल्स बनेगा. यानी कि बी सेल के मैच्योरेशन में प्रो बी सेल, प्री बी सेल, इमेच्योर बी सेल और मैच्योर बी सेल, ये डिफरेंट स्टेजेस हैं. मैच्योर बी सेल अपने सरफेस पे इम्यूनोग्लोबुलिन D एक्सप्रेस करते हैं और साथ में बाकी चार में से कोई एक, आइदर IgM और G और A और E, यानी कि एक IgD होगा और एक बाकी चारों में से कोई एक होगा. जो इनिशियल इन्फेक्शन होता है, एक्यूट स्टेज ऑफ इन्फेक्शन, इनिशियल फ्यू वीक्स, उसमें IgM बनाता है वो बी सेल, और फिर वही बी सेल आफ्टर सम वीक्स इट स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग IgG. और अगर पैरासिटिक इन्फेक्शंस है या एलर्जी कंडीशंस है
तो बी सेल दे विल स्टार्ट सिंथेसाइजिंग IgE, और अगर वो बी सेल कोई मुकोजल सरफेस पे है तो इट विल स्टार्ट सिंथेसाइजिंग IgA. So depending upon location and requirement, the B cells will start producing antibodies. Each B cell is programmed to form only one class of immunoglobulin of single टाइप, मीन्स उसमें या तो काप्पा चेन या लामड़ा चेन, दो में से एक ही लाइट चेन होगी और स्पेसिफिक एपिटोप को करस्पॉन्डिंग बनेगा. यानी कि एक बी सेल एक ही टाइप के एपिटोप से रिएक्ट कर सकता है. अगर 10 बी सेल है तो वो 10 बी सेल्स 10 डिफरेंट टाइप के एपिटोप से रिएक्ट कर सकेंगे. एक एपिटोप से एक ही टाइप का बी सेल रिएक्ट कर सकता है, और आफ्टर एक्टिवेशन उसमें से क्लोन्स बनते हैं और वो क्लोन्स विल बी इंक्रीजिंग इन नंबर, so that number of B cells reacting with the antigen increases manifold, but they are just the clones of that single B cell. This is one figure which shows how the B cells finds an antigen. B cells get activated by the antigen, और it also waits for the helper T cell signal. तो helper T cell ने भी आके एक्टिवेट किया और ये एंटीजन बाइंडिंग हुआ, उससे भी एक्टिवेशन हुआ. ये दो एक्टिवेशन पॉइंट्स के बाद B cell starts multiplying और converts into plasma cells, और वो प्लाज्मा सेल्स फिर एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देते हैं. और जो एंटीबॉडीज़ बनाते हैं प्लाज्मा सेल्स, वो एंटीबॉडी जाके एंटीजन के सरफेस पे अटैच हो जाते हैं, और वो एंटीजन एंटीबॉडी का जो कॉम्प्लेक्स है उसको फैगोसाइट जब देखता है तो फैगोसाइट को वो खाने का मन करता है, तो वो उसको एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स को एनगल्फ कर लेगा और इस तरीके से वो एंटीजन डिस्ट्रॉय हो जाएगा. और थोड़े प्लाज्मा सेल्स मेमोरी सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं कि फ्यूचर में जब वो एंटीजन दोबारा आएगा तो हमको याद रखना है कि ये इसके साथ कैसे डील करना. तो फ्यूचर में जब भी रिस्पॉन्स आएगा तो दैट विल बी मच फास्टर एंड मच स्ट्रॉन्गर कंपेयर टू द फर्स्ट रिस्पॉन्स, एंड दिस टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ द मेमोरी सेल्स. प्लाज्मा सेल जो है वो एंटीबॉडी सेक्रेटिंग सेल्स हैं, और दे आर एंड सेल्स, एंड उसकी लाइफ स्पेन अबाउट 2 to 3 days ही होती है. और मल्टीपल प्लाज्मा सेल्स क्लोनिंग करके मल्टीपल प्लाज्मा सेल्स बनते हैं, और हर एक में से मल्टीपल एंटीबॉडीज़ मॉलिक्यूल्स बनते रहते हैं. और एक ही प्लाज्मा सेल में से एक ही टाइप का सिंगल टाइप का स्पेसिफिसिटी का इम्यूनोग्लोबुलिन बनेगा. सिंगल एलोटाइप, सिंगल क्लास, सिंगल लाइट चेन टाइप ओनली, यानी कि एकदम स्पेसिफिक होते हैं. ऐसे नहीं कि एक सेल मल्टीपल टाइप के बना रहा है, एक सेल एक ही पर्टिकुलर टाइप का एंटीबॉडी मॉलिक्यूल बनाएगा. दिस इज़ अ फिगर ऑफ प्लाज्मा सेल. फिर आए नल सेल्स. नल सेल्स मतलब क्या? तो दो टाइप के लिम्फोसाइट्स हमने देखे, एक तो टी लिम्फोसाइट्स जो थाइमस में से डेवलप होते हैं, और एक बी लिम्फोसाइट्स जो बोन मैरो में से डेवलप होते हैं. फिर ऐसे भी कुछ लिम्फोसाइट हैं जो नाइदर टी लिम्फोसाइट हैं नॉर बी लिम्फोसाइट हैं, यानी कि उनके सरफेस पे ना तो टी सेल के रिसेप्टर्स हैं और ना तो बी सेल के रिसेप्टर्स हैं. ऐसे सभी लिम्फोसाइट्स को बोलते हैं नल सेल्स, क्योंकि दे आर लैकिंग इन ऑल दोज रिसेप्टर्स विच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स. ये नल सेल्स ये थर्ड कैटेगरी ऑफ लिम्फोसाइट हो गया. तो वैसे अपन कॉमनली दो वेराइटी ऑफ लिम्फोसाइट जानते हैं, एक तो टी सेल्स और एक B cells. Now we know there are 3 varieties of lymphocytes: T cells, B cells and null cells. null cells को null cells इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके सरफेस पे ऐसे कोई रिसेप्टर है नहीं जैसे T और B सेल के सरफेस पे होते हैं, ठीक है. और उनको लार्ज ग्रैनुलर लिम्फोसाइट भी बोलते हैं क्योंकि उनकी साइज़ बड़ी होती है. और नल सेल्स में डिफरेंट वेराइटीज़ हैं, डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन उसमें अलग अलग टाइप के सेल के नेम्स बनाए गए हैं. NK सेल नेचुरल किलर सेल, ADCC सेल एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल साइटोटॉक्सिसिटी सेल्स, फिर LAK सेल्स लिम्फोकाइन एक्टिवेटेड किलर सेल्स. तो ये डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ नल सेल्स, ये NK सेल्स, ADCC सेल्स और LAK सेल्स, दिस आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नल सेल्स ओनली. They are doing the function of destroying the pathogen in different manners. Or natural killer cells, they possess this spontaneous cytotoxicity towards various target cells, mainly the malignant cells and the virus infected cells. किलर सेल का काम क्या है? ये नेचुरल किलर सेल का काम कि वो नेचुरली किल करते हैं,
अब आपने देखा कि साइटोटॉक्सिक टी सेल्स और बी लिम्फोसाइट दोनों को कुछ स्टिमुलस चाहिए कि भी कोई स्टिमुलेशन आएगा, हेल्पर टी सेल हेल्प करेगा, प्रोसेसिंग होगा एंटीजन का, ये सब होगा, उसके बाद वो एक्टिवेट होके अपना सेल मेड इम्यूनिटी या ह्यूमरल इम्यूनिटी का काम करते हैं। लेकिन नेचुरल किलर सेल्स का ऐसा है कि उनको प्रायर इन्फॉर्मेशन या प्राइमिंग ऐसा कुछ चाहिए नहीं, उनको किसी सेल की हेल्प नहीं चाहिए या कहीं से कोई सिग्नल नहीं चाहिए एक्टिवेट करने के लिए, वो अपने आप ही एक्टिवेट हो जाते हैं। किसी भी ऐसे टाइप के सेल को देखते हैं, वायरस इन्फेक्टेड सेल या कैंसर सेल को देखते हैं, तो वो नेचुरली एक्टिवेट होकर उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स, मेलिग्नेंट सेल्स और बैक्टीरियम इन्फेक्टेड सेल्स को डिस्ट्रॉय नेचुरली करने का काम ये नेचुरल किलर सेल्स करते हैं। फिर आए फैगोसिटिक सेल्स। फैगोसिटिक सेल्स में मैक्रोफेजेस और माइक्रोफेजेस होते हैं। मोनोसाइट्स जो सर्कुलेशन में होते हैं वो एनलार्ज होकर मैक्रोफेज बन जाते हैं और मैक्रोफेज बन के वो फैगोसाइटोसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। और मैक्रोफेज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल का भी रोल प्ले करते हैं। वो एंटीजन का छोटा छोटा फ्रेगमेंट्स करके उसके बिट्स को अपने सरफेस पे ला के प्रेजेंट करते हैं और सामने टी हेल्पर सेल्स को प्रेजेंट करते हैं। तो फैगोसिटिक सेल्स में जो मैक्रोफेजेस होते हैं दे डू फैगोसाइटोसिस ऑल्सो एंड दे डू द जॉब ऑफ एंटीजन प्रेजेंटेशन ऑल्सो। और ये एक फिगर है, इसमें ये मैक्रोफेज है। मैक्रोफेज ने एक एंटीजन आया, एंटीजन को एनगल्फ किया, एनगल्फ करके अंदर फैगोजोम में उसको ले लिया। वो फैगोजोम लाइजोजोम से फ्यूज़ होता है और फैगोलाइजोजोम फॉर्मेशन हो जाता है। और वो फैगोलाइजोजोम में जो एंटीजन था उसके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हो जाते हैं और उसको डिस्ट्रॉय करके उसका डेब्रिस वो रिलीज़ कर देता है। दूसरे टाइप ऑफ सेल्स हैं माइक्रोफेजेस। माइक्रोफेजेस में पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स आते हैं, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स आर एक्टिवली फैगोसिटिक एंड फॉर्म द प्रीडोमिनेंट सेल टाइप इन एक्यूट इन्फ्लेमेशन। इओसिनोफिल है एलर्जिक कंडीशंस में और पैरासिटिक कंडीशंस में पार्टिसिपेट करते हैं। और बेसोफिल्स they are found in blood and tissues and they contain large number of basophilic granules, heparin, histamine, serotonin वगैरह, and they have a role in anaphylaxis and atopy. फिर dendritic cells भी होते हैं, they do the functions of antigen presentation like macrophages. With this we end the cells of the immune system. Thank you.